اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اگر غور و فکر کرے چند چیزوں پہ تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، کوئی بھی چیز انسان کے نقصانات کے لیے نہیں بنائی۔ اب ایک لیمو کی مثال لے لیجئے۔ لیمو کو عربک میں لبیک کہتے ہیں اور فارسی میں لیبو کہتے ہیں۔ سندھی زبان میں بھی اس کو لیمو اور انگریزی میں لیمن کہتے ہیں۔ اس کا رنگ زرد اور کچے لیمو کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، اس میں سیٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم کا جو لیمو ہوتا ہے اس کا چھلکا کاغذ کی طرح پتلا ہوتا ہے اور اس کا مزاج دوسرے درجے اور ترچھے درجے کا ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 6 ماشے لیمو کا رس جبکہ روغن لیمو کی مقدار 1 سے 3 قطرے تک کی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ان کے فوائد بتانا چاہوں تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ان میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ جو 90 بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں۔ آج کون سی بیماریوں سے اگر ہم اس کا استعمال اپنے کھانے کے دوران مختلف اوقات میں کریں تو ہم کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آج وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وٹامن بی اور سی اور نمکیات کی بہتری کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اس میں وٹامن اے معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا گودا اور رس دونوں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو سردی سے بچاتا ہے۔ جب انسان کو سردی لگتی ہے تو یہ سردی سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بھوک لگتی ہے اور پیاس کو تسکین پہنچاتا ہے۔ جگر کو صاف کرتا ہے۔ تازہ لیمو بنا کر بخار میں پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ملیریا یا بخار کی صورت میں نمک کو مرچ یا کالی مرچ کے ساتھ لگا کر چوسنے سے بخار کی شدت مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ یہ پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہیضے میں لیمو کا رس پینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے، ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ لومی کے جوش کو ٹھیک کرتا ہے، معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے اور خاص طور پر جگر کے گرم مواد کو ختم کر دیتا ہے۔ لیمو کو کاٹ کر اگر چہرے پر لگا دیا جائے تو اس سے چھائیاں اور کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یرقان میں لیمو کے رس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر گردن کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو گردن اگر کالی ہو تو وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، رنگت اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیمو کے بیج اگر بریان کر کے کھائے جائیں تو فوراً الٹی آنا بند ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کو ہمیشہ چھیل کر استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کی کے اور بڑوں کی کے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس خوراک سے 2-3 دانوں سے آرام پا جاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کے زہر کو اثر کو ختم کر دیتا ہے، اس سے زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔
नींबू सूंघने से नज़ला बुखार भी ख़त्म हो जाता है। अगर नींबू के रस को चाकू में हल करके इसे जस्त के बर्तन में डाल के रगड़ दिया जाए तो इससे दिमागी रगें खुलने लग जाती हैं, बिनाई की कमज़ोरी, आँखों की सुर्खी ये दूर होने लग जाती है। सुरमे की मानद खुश्क हो जाए, अगर आँख जो है सुरमे की मानद खुश्क हो जाए, अगर थोड़ी बहुत नमी रह जाए तो फिर धूप में खुश्क करके बतौर सुरमा इसको इस्तेमाल कर लें तो आँखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। ताज़ा नींबू के छिलकों से रोगन नींबू तैयार किया जाए तो पेट की गैस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। बैरूनी ममालिक में नींबू के छिलकों से मुरब्बा बना दिया जाता है जिसको माल्टाइड कहते हैं, जो बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है। नींबू का अचार रबड़ी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अगर हम चावल को उबालते हुए अगर 1 चम्मच नींबू का रस इसमें निचोड़ दें तो चावल खुश रंग और खुशबूदार हो जाते हैं और ये जल्दी हजम हो जाते हैं, गैस नहीं पैदा करते। और रोस्ट एशिया पर जैसे कि चिकन वगैरह हम रोस्ट करते हैं, अगर इस पर नींबू निचोड़ के खाएं तो इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। मछली की बदबू ख़त्म करने के लिए इसमें नींबू लगा दिया जाए तो मछली का जायका खुश जायका बन जाता है। नींबू के छिलकों से दांत साफ करने से कभी भी दांत का दर्द नहीं होता और दांत हमेशा चमकते रहते हैं। अगर नक्सीर कसरत से आ रही हो तो फौरन नींबू के चंद कतरे लगा दिए जाए, नाक के साथ लगा दिया जाए तो उसी वक्त नक्सीर आना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। वज़न कम करने के लिए नींबू का रस 2 चमचे शहद में डाल के 1 गिलास में मिलाकर सुबह नहार मुँह अगर पिए तो चंद ही दिनों में हमारा वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर सर्दी के मौसम हो तो नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं तो सर्दी में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाता है। सलाद वाली एशिया मसलन पुदीना हो गया और सलाद कोई भी सलाद की एशिया है, अगर उस पर हम करें तो उनका जायका और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। नींबू खून को साफ करता है, अगर ब्लड प्रेशर के तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। पेशाब की तकलीफ़ को फ़ायदा देता है। नींबू का रस 10 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम मिला कर के 1 हफ्ता तक अगर करें तो दर्द गायब हो जाता है। अगर कान में पीप आनी लगे तो इसको कान में चंद कतरे डाल दें तो कान में पीप आना बंद हो जाएगी। नींबू का रस एक चट्टान जो मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर हम नींबू के रस को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो मुंह की बदबू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और फिर कभी भी नहीं होगी। दांतों का दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। खुश्क खारिश की सूरत में नींबू का रस 5 ग्राम, अर्क के गुलाब 10 ग्राम और चंबेली का तेल 15 ग्राम ये लगा करके हम खारिश वाली जगह पर लगाएं तो खारिश मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। नींबू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो दाग धब्बे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ज़ख्म जल्द ठीक हो जाता है। नींबू का रस बैरूनी इस्तेमाल के लिए नरम और चेहरे को काफ़ी हसीन बना देता है। बाज़ दफ़ा नींबू के रस को शहद में मिलाकर चटाने से खांसी ठीक हो जाती है। अगर दांतों से खून आता हो तो 1 अदद नींबू का रस 1 गिलास में
पी लें तो ये ठीक हो जाते हैं। गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पथरी को नींबू के ज़रिए से ठीक कर देते हैं। पेट हल्का और नरम कर देता है। कब्ज़ कुशा भी होता है। ये मर्ज़ खून की ख़राबी से, कुछ मर्ज़ ऐसा होते हैं जो खून की ख़राबी से पैदा होते हैं, जैसा कि सकड़वी होता है। इस मर्ज़ में मसूड़े बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, जिस्म पर स्याह धब्बे रह जाते हैं, जिस्म में मुसलसल दर्द आने लगता है। नींबू के मुसलसल इस्तेमाल से इन चीज़ों से शफा मिल जाती है। नींबू का तेज़ मेलोल दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसमें 90 बीमारियों का इलाज है। अल्लाह पाक ने 90 बीमारियों से इंसान की हिफाजत फरमा देते हैं। अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इसके फ़वाइद आप देखें तो इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और अल्लाह पाक ने सिर्फ इस छोटी सी चीज़ में अल्लाह पाक ने इतने फ़वाइद रखे हैं। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इसके फ़वाइद की जो ये डिटेल है, या आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।